الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حدیث حسن رواه الترمذی وغیرہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی چھوٹی اور مختصر سی حدیث ہے، لیکن اپنے معانی کے لحاظ سے اور اپنے مقتضا کے لحاظ سے بہت ہی جامع اور بہت ہی شامل قسم کی حدیث ہے. اس حدیث کو بہت سارے محدثین نے ان چند احادیث میں شمار کیا ہے جو حدیثیں اسلامی آداب اور اسلامی اخلاق کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں. اس حدیث کو اگر ہم نے سمجھا اور اسے اپنا لیا تو دراصل ہم لوگ اسلام نے جو اخلاق کی باتیں، جو آداب سکھلائے ہیں، زبان کے تعلق سے، کانوں اور آنکھوں کے تعلق سے، اور اسلام کے دوسرے اعضاء کے تعلق سے جو تعلیمات اور جو ہدایتیں دی ہیں، ان سب پہ ہم بہت حد تک عمل کر سکیں گے. یعنی صرف اس ایک حدیث کے مفہوم کو اگر ہم لوگوں نے سمجھا اور اسے اپنا لیا تو بہت ساری باتیں خود بخود ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی جو تعلیمات ہیں اخلاق سے اور آداب سے متعلق، وہ بہت حد تک اس ایک حدیث سے پوری ہوتی ہے. اسی معنی میں یہ بہت ہی جامع اور بہت ہی شامل حدیث محدثین نے اسے شمار کیا ہے. اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو کمال درجے تک پہنچا سکتے ہیں. جو اسلام، جس دین کو ہم مانتے ہیں، اس کی خوبیاں ہمارے اندر کیسے پیدا ہو سکتی ہیں، اور ہمارے عمل کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے. اگر اس حدیث کو ہم سنیں، اس کے مفہوم کو ہم جانیں اور اسے ہم اپنا لیں تو یہ ساری باتیں ہمارے اندر آ جائیں گی. ہم دین کو مکمل کر پائیں گے، اپنے اسلام کو یعنی اپنے مسلمان ہونے کو ہم خوبیوں بھرا بنا سکیں گے. مسلمان ہونا یہ ایک چیز ہے، لیکن مکمل اگر دین ہو، اور دین کو انسان نے اگر سمجھا ہے، دین اسلام کو اگر انسان نے سمجھا ہے اور اس کے خوبیوں کو اگر اپنایا ہے، تو ایک مسلمان کی زندگی خوبیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے. وہ خود اپنے لیے بھی بہت ہی مفید ہوتا ہے، اور اپنے گرد و پیش کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور پورے معاشرے اور پورے سماج کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے. کسی کو اس سے کوئی ضرر اور نقصان نہیں پہنچتا. ہر شخص اس سے محبت رکھتا ہے، اور ہر شخص سے تعاون کی اور اخوت کی جو تقاضے ہوتے ہیں اس کی امید رکھتا ہے. تو یہ حدیث اسی قبیل کی ایک حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. یہ انسان کے اسلام کے مکمل ہونے کی اور خوبیوں سے بھرے ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے لیے غیر ضروری ہیں. یعنی انسان کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر، دنیا کے اندر جو ضرورتیں ہیں اور اخروی جو ضرورتیں ہیں، یا جو چیزیں دنیا کے اندر منفعت کی چیزیں ہیں، انسان کو نفع پہنچاتی ہیں، انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں، اس سے انسان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، یا اسی طرح آخرت کے اندر جو چیزیں، جو اعمال ہم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، انہی کو ہم برتیں، انہی کو ہم کریں اور انہی کو اپنائیں. اور باقی چیزیں جو ہمارے لیے مفید نہیں ہیں، جو ہمارے لیے ضرر رساں ہیں، یا یہ کہ ہمارے لیے وہ غیر ضروری ہے، ہماری کسی ضرورت کی نہیں ہے، ان کو ہم نہ اپنائیں. اپنی زندگی کو، خود کو ان سے ہم دور رہیں. اس کے اندر اگر ہم غور کریں گے تو بہت ساری باتیں ایسی پائیں گے معاشرے کے اندر کہ ہم لوگوں اسے کرتے ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ وہ ہمارے لیے بالکل غیر ضروری ہیں، بلکہ ہمارے لیے ضرر رساں ہیں. مثال کے طور پر کوئی شخص کہیں بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی رسالہ ہے، کوئی میگزین ہے،
इंसान यूं ही उसे उलट पलट करता है। और आप लोग जानते हैं कि जो भी रसाले और मैगजीन इस जमाने में पाए जाते हैं उसके अंदर बहुत सारी गलतियां हुआ करती हैं, अखलाक से गिरी हुई बातें हुआ करती हैं, और बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हुआ करती हैं जो जिसे किसी मुसलमान को देखना जायज नहीं है हरगिज़ हरगिज़। लेकिन इंसान अगर यूं ही बैठा है, अपने वक्त को गुजारने के लिए इंसान उठा लिया। मिसाल के तौर पर अगर हम कहीं कहें किसी डॉक्टर को दिखाना है, वहाँ वेट कर रहे हैं, इंतजार में भी हम हैं, वहाँ कोई मैगजीन रखा है, हमने उसे उठा लिया और हम देखेंगे तो यकीनन ऐसी तस्वीरों पर हमारी निगाह पड़ेगी जो हमारे लिए नुकसानदेह है, उनको देखना हमारे लिए जायज़ नहीं है। उसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। इंसान आज के ज़माने में इंटरनेट का इस्तेमाल करता है और बहुत कसरत से इस्तेमाल करता है। कभी तो होती है कि हमारी ज़रूरत है, उलमा को भी उसकी ज़रूरत होती है कि वो इंटरनेट का इस्तेमाल करें, इस ज़माने में बेहद ज़रूरी है। और आम तौर से समाज के अंदर हर शख्स छोटा या बड़ा हो, किसी भी उम्र का हो, उसकी वो ज़रूरत का सामान है, वो इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर हमने उसके अंदर यूं ही अगर वक्त को ज़ाया करने के लिए उठाया और यूं ही यूट्यूब पर या किसी जगह फेसबुक पर या कहीं और हम हैं और हम यूं ही उलट पलट कर रहे हैं, हमको कोई चीज़ तलाश करनी नहीं है, यूं ही अपने वक्त का हम ज़ाया कर रहे हैं, यूं ही हम अपने वक्त को काट रहे हैं, तो यकीनन ऐसी चीज़ें हमारे सामने आएंगी जो हमारे लिए हराम होंगी, जिनका देखना हमारे लिए जायज़ नहीं होगा, वो चीज़ें भी आएंगी। और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि अगर हम उसमें लगे हुए हैं तो हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है। उसी वक्त को अपने लिए मुफीद तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं वेटिंग में अगर हम हैं तो खामोशी से अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र कर सकते हैं। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे अस्कार और बातें हमें याद होती हैं। उस वक्त अगर हम उसका इस्तेमाल इस तरह से कर लें तो बहुत मुफीद होगा। वो हर शख्स के पास कुरान करीम है, इंसान की जेब में मौजूद होती है, आपके मोबाइल के अंदर। तो ऐसी सूरत में कहीं अगर हम हैं उसमें से कुछ पढ़ लिया तो ये चीज़ें इंसान के लिए मुफीद होती हैं। तो इंसान को देखना है कि कहाँ कौन चीज़ हमारे लिए मुफीद, हम उसको हम करें। जो चीज़ हमारे लिए गैर ज़रूरी हो, जिसके हमारी कोई मनफात ना हो, दुनियावी या उखरवी किसी तरह की, दुनिया के अंदर फायदे की चीज़ें होती हैं उसे भी हमको अपनाना है, और उखरवी नुक्ते निगाह से अगर जो चीज़ फायदे की है उसे भी एक मुसलमान को अपनाना है। मुसलमान बहुत ही होशियार होता है, हमेशा अपने नफ़े की बात सोचता है, चाहे वो दुनियावी नफ़ा हो या उखरवी नफ़ा हो, लेकिन वो खुदगर्द नहीं होता, चीज़ों को अपने तक महदूद नहीं रखता। वो चाहता है कि नफ़ा आम हो जाए, माशरे के हर फर्द तक पहुँच जाए, खुद वो उसकी ज़िंदगी तक महदूद न रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया है, इहरिस अला मा यनफ़उ, तुमको जो चीज़ नफ़ा पहुँचाए उसके तुम हरीस बनो, यानी उसको तलाश करो, उसे जानो और उसे हासिल करने की कोशिश में लगो। यानी यूं ही वक्त का ज़िया न करो, वक्त को बर्बाद न करो। वो चीज़ें जो तुम्हारे लिए मुफीद हैं किसी लिहाज से, दुनिया के लिहाज से नफ़ा बख्श है या आखिरत के लिहाज से नफ़ा बख्श है, उसको हासिल करने की कोशिश करो। इंसान कारोबार में लगता है, कारोबार इंसान को दौलत देता है, माल इंसान के हाथ में आता है। ये माल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खैर कहा, ये खैर है, ये बहुत ही मुफीद चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जितना इंसान हासिल करता है उतना ही इंसान अल्लाह के रास्ते में उसे खर्च कर सकता है। लेकिन अगर इंसान ने लालच बढ़ा दी, समेटता जाए, उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च न करे, वो चीज़ उसके लिए मुदिर बन जाती है। तो इंसान को कारोबार करना है, पूरे मन से कारोबार करना है, दौलत को हासिल भी करना है ताकि वो एक मजबूत इंसान बन सके। दौलत एक मजबूती की निशानी है, इंसान दौलत पाके भी मजबूत होता है, माशरे के अंदर और पूरे समाज में उसको इज्जत भी मिलती है। तो उसे हासिल भी करना है ताकि हम मजबूत बन सकें और माशरे के हम किसी न किसी लिहाज से हम मदद कर सकें। अगर इंसान के पास कारोबार होता है, वो दूसरे बहुत सारे लोगों को कारोबार दे सकता है, बहुत सारे लोगों को कारोबार के रास्ते में बता सकता है। ऐसी सूरत में वो बहुत ही मुफीद होगा। तो इंसान अपने वक्त को ज़ाय न करे, इस्तेमाल करे। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि किस तरह से अपने औकात को ज़ाय करते हैं और किस तरह से अपने खुद को हम नुकसान पहुंचाते हैं, दुनिया के लिहाज से भी और आखिरत के लिहाज से भी। इंसान को खाली वक्त मिला, वो सड़कों पे गली कूचों में इधर उधर खड़ा है, अब उसकी निगाहें पड़ती हैं हर तरह की चीज़ों पर। इंसान अगर बहुत ज़्यादा मुहतात रहता है, हराम चीज़ों पर उसकी निगाह नहीं पड़ती, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कोई बगल से गुजर रहा है, उसके हाथ में कोई थैला है, कोई चीज़ है, इंसान देखता है कि वो क्या ले जा रहा है, उसकी क्या ज़रूरत है। हमको क्या जरूरत है कि हम दूसरे की चीजों को देखें कि दूसरा अपने घर क्या ले जा रहा है।
उसकी हमसे कोई हाजत और कोई जरूरत नहीं है। अगर हम देखेंगे तो दूसरे के हम पीछे पड़ेंगे। अगर हम सड़कों पर खड़े हैं, किसी के साथ हमारी बात हो रही है, अगर काम की गुफ्तगू नहीं है, वहाँ काम की जरूरत की गुफ्तगू अगर नहीं है, तो इधर उधर की बातें होंगी। जब इधर उधर की बातें होंगी तो उसके अंदर किसी शख्स का जिक्र आएगा, किसी की बाबत हम बात करेंगे, और वहाँ ये गीबत और चुगली के कबील की गुनाह हमसे सरजद होंगे। और ये यकीनी है कि ऐसा होगा। हम जितना भी बचें, अगर हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें तीसरे और चौथे शख्स का जिक्र आता है, तो वहाँ यकीनी है कि वहाँ किसी न किसी नाहिए से उसकी गीबत और चुगली होगी, कुछ हसद के जज्बात जागेंगे। इस तरह की बातें यकीनी तौर से होती हैं। तो हम इंसान को चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर मोमिन को हिदायत दी है कि अपने घर के अंदर टिक के रहे, सड़कों पे गली कूचों के अंदर न रहे। जरूरत अगर है तब हम घर से निकले, अपनी जरूरत को पूरा करके हम अपने घरों को लौट आए। ये नहीं कि हम सड़कों पे खड़े रहें, गली कूचों में रहें, हर चीज को हम निहारते रहें, देखते रहें, उसकी हमको कोई जरूरत नहीं है। अगर हम दूसरों की तरफ देखेंगे तो दूसरों की लज्जतों को देखेंगे, दूसरों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ दिया वो भी हम देखेंगे। हमारे नफ्स के अंदर ख्वाहिशें जागेंगी और उस ख्वाहिशों को हम गलत तरीके से पूरा करने के लिए कोशा भी हो सकते हैं। ये चीजें हमको गलत रास्ते की तरफ ले जाती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में सूरह ताहा के अंदर फरमाया, वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फीह। दूसरे लोगों को, तुम में से कुछ लोगों को जो हमने मताए दुनिया दे रखी है, ज़हरतल हयात है, उसकी जानिब अपनी निगाह को मत दौड़ाओ। अल्लाह ने मना किया है कि हम दूसरों की चीजों को देखते रहें। दूसरों के पास गाड़ियां हैं, दूसरों के पास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको बिल्डिंगें दी हैं, उनके बंगले हैं, उनके पास सब कुछ है। अगर हमको अल्लाह ने नहीं दिया है तो हम उनकी तरफ ललचाई निगाहों से हरगिज़ न देखें। इसलिए कि ये चीजें हैं, ये ज़ायल होने वाली चीजें हैं। दुनिया का ये मता है, कुछ दिनों के अंदर ये खत्म हो जाएगा। जिस तरह से ये चीजें खत्म हो जाएंगी, हमारी जिंदगी और हमारी उम्र भी बहुत ही मुख्तसर और महदूद है। ये चीजें भी देखते देखते खत्म हो जाती हैं। कल हम लोग किस उम्र में थे, आज किस उम्र में है, हर शख्स अपना अगर निगाह रखे अपने ऊपर, खुद के ऊपर, तो वो समझ सकता है। अभी बचपन गुजरा नहीं कि जवानी के अय्याम आए, वो भी गुजर गए। अब इंसान बुढ़ापे की दहलीज के अंदर है। ये तमाम चीजें हर शख्स देखता है। और इस जमाने में भी हम देख रहे हैं कि आनन फानन किसी शख्स की मौत आ जाती है। इस जमाने में कसरत से हो रहा है, और ये भी कुर्ब क़यामत की निशानी में से है कि मौतें अचानक आया करेंगी। तो ये हम देखते हैं कि जमाने में किस कसरत से हो रहा है। वो चीजें हमारे लिए इबरत का सामान है। अपनी जिंदगी को हम समेट के रहें, दूसरों की जिंदगी के अंदर बेजा मुदाखलत न करें। दूसरों के अंदर मुदाखलत करें तो वो दीन के और शरा के नहिये से, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो हुक्म है अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का, कहीं अगर मुनकर देखते हैं तो उसको समझाने की, उसको रोकने की कोशिश करें। हम शरअन इसके पाबंद हैं। ये किसी के मामले में, निजी मामले के अंदर मुदाखलत नहीं है। लेकिन अगर किसी के घरेलू मामलात के अंदर, किसी के कारोबार के अंदर बिला वजह उसने हमसे कुछ जाना नहीं, हमसे उसने कुछ पूछा नहीं, हम बिला वजह उसको मशवरे देते रहे, बिला वजह उसको समझाते रहे, चीजें मुदाखलत शुमार की जाएंगी। और इस्लाम ने इस चीज को पसंद नहीं किया है। तो मुसलमान को चाहिए कि हर ऐसी चीज जो हमारे लिए मुफीद नहीं है उससे हम दूर रहें, खुद को दूर करें। इस सूरह ताहा की आयत करीमा के पेश नजर इसकी तफसीर में शेख अब्दुल रहमान सादी ने ये फरमाया कि ला तमुद्दु ऐनैका मुअजिबन वला तुकर्रिर नज़र मुस्तहसिनन इला अहवालिद दुनिया। दुनिया की लोगों की जो हालतें हैं, दुनिया में कौन किस अंदाज में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसे क्या दिया है, उसकी तरफ हम बार बार निगाहें न दौड़ाएं। निगाह पड़ गई उसको हम फेर लें, बार बार उस जानिब न दें, और उसकी हम ललचाई निगाहों से उसकी तरफ हम न देखें। इसलिए कि अगर हम ऐसा करेंगे, दूसरों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खाने पीने की क्या चीजें दी हैं, कैसे कपड़े दिए हैं, कैसा बिल्डिंगें उनको दी हैं, ये चीजें उनके साथ खास है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो बंदा है, अल्लाह ने उसको दिया है। हमको जो चीज अल्लाह ने दी है वो हमारी है, हमसे ताल्लुक रखती है। हमको उनके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा को ढूंढना है। जो कुछ अल्लाह ने हमको दिया है उसमें हमें अल्लाह की रजा ढूंढनी है। लेकिन अगर हम दूसरों के पीछे भागते रहे तो भागते भागते इस जिंदगी के इख्तिताम तक, हम अपनी मौत तक पहुंच जाएंगे। वो चीजें हम हासिल नहीं कर सकते अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे मुकद्दर में नहीं रखी है। अब हमारे मुकद्दर में जो कुछ है, हम अगर ईमानदारी से और मेहनत से शरीयत की जो बातें हैं, जो हुदूद हैं, उनके अंदर रहकर अगर हमने मेहनत की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुकद्दर में किया है वो हमको जरूर व जरूर हासिल होगा। लेकिन अगर हमने दूसरों की तरफ देखकर
हमने हराम रास्तों को अपना लिया, इससे हमारी दुनिया भी गारत होगी, इसलिए कि हमको बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। जो इज्जत है माशरे के अंदर वो मिट जाएगी, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस चीज़ को उसके साथ जोड़ रखी है। इंसान अगर गलत रास्ते से जाता है तो उसी रास्ते को चलता चला जाता है, आखिर में उसके हाथ में रुसवाई आती है। और अगर हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा ढूंढी है और उसी अंदाज में हमने दुनिया के अंदर कदम बढ़ाया है, ये चीज़ें हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा से करीब करेंगी और उसको हमें वो चीज़ें हासिल होंगी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए, जो चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे मुक़द्दर में की हैं, वो चीज़ें हमें हासिल होंगी और हलाल तरीके से हासिल होंगी, हराम तरीके से नहीं। और ये चीज़ भी हम ध्यान रखें कि इस हदीस का ताल्लुक बहुत हद तक इंसान की ज़ुबान और इंसान की आंखों से है। इंसान अपनी आंखों की इधर उधर न दौड़ाए, बिना ज़रूरत हम न देखें, फजूल की चीज़ें हम देखते हैं रसाले और मैगजीन के अंदर, अखबारात को उलट पलट करने के दौरान, सड़कों पर गली कूचों में खड़े होकर। उसी तरह अगर हम बातें करते हैं तो बातें भी हम ऐसी न करें, इतनी न करें जो फजूल हो। यानी सिर्फ ये नहीं, इस्लाम ने सिर्फ ये नहीं मना किया है कि हम गीबत चुगली न करें, बल्कि ये चीज़ भी मना है कि हम फजूल कामों में न पड़ें। फजूल बातें अगर हम करेंगे तो कुछ बातें ऐसी होंगी जो ज़रूर रसा होंगी, हमारी दुनिया को भी आखिरत पहुंचाएंगी जिसको हमको पछतावा होगा, और हमारी आखिरत के लिए भी वो मुदिर होंगी। मुस्नद अहमद की एक हदीस है, इन्न मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ क़िल्लतुल कलाम फ़ी मा ला यानी। इसी हदीस को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरी जगह जो मनकूल है वो इस अल्फाज के अंदर है कि इंसान का ये इस्लाम की ये खूबी है, इंसान के मुसलमान होने की ये खूबी है कि वो कम बोलता है। जो चीज़ें उसके लिए मुफीद नहीं है, जो चीज़ें उसके लिए गैर ज़रूरी नहीं है, उस मौजू के अंदर वो नहीं पढ़ता, अपनी ज़बान को वो पीछे रखता है। तो ये चीज़ें वो हैं जो बहुत मुफीद हैं। इन चीज़ों को अगर हमने समझा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुख्तसर सी हदीस को अगर हमने समझा और इसे अपना लिया तो ये खूबियों भरी हदीस है। इससे हमारे इस्लाम के अंदर, हमारे मुसलमान होने के अंदर खूबियाँ पैदा होंगी और हम अच्छे से अच्छे मुसलमान बन सकेंगे, जो खुद के लिए मुफीद होंगे, अपने घर वालों के लिए मुफीद होंगे और पूरे माशरे के लिए मुफीद होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको हदीसों को समझने की, इस्लामी तालीमात को समझने की तौफीक दे और फिर हमें ये तौफीक दे कि हमको पूरी तरह से अपना लें, उन पर अमल करें। कहीं भी हम हो वो हदीसें और कुरान करीम की आयतें उस ताल्लुक से हमको याद आती रहे कि इस हदीस के अंदर अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है, कुरान करीम की आयत हमने सुनी है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये इरशाद और ये हुक्म है, ये चीज़ें हमें याद रहें। ये नहीं कि हम बातें सुने, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। अगर हम इरादा करेंगे, हमारी ये कोशिश होगी चीज़ें हमें याद रहें, तो हमारे दिल के अंदर ये चीज़ें महफूज रहेंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन चीज़ों को हमारे दिलों के अंदर महफूज रखे और हमारे आदा व जवारों को ये कुव्वत दे और ये तौफीक दे कि इन चीज़ों पर हम अमल कर सकें। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।